السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اور میں آج بڑا ایکسائٹڈ ہوں آپ کے لیے. میں بڑی خبریں لے کے آیا ہوں. اندر سے میری چڑیل جو ہے نا نیب کے اندر سے جا کے خبریں لے کے آئی ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے سامنے. اور چڑیل کا یہ کہنا ہے کہ میاں شہباز شریف ہوں، خواجہ سعد رفیق ہوں، علیم خان ہوں، منظور وٹو ہوں، سمیع اللہ چودھری ہوں، یہ چینی صاحب ہوں یا چینا صاحب ہوں، غضنفر مجھے ان کا نام نہیں پتا، میاں شہباز شریف ہوں، ان سب کے متعلق اور بڑی خبریں ہیں. اور خبریں کیا، میاں منشا کے اوپر خبریں ہیں کہ ان کے ساتھ آج کیا ہوا. ان کو سٹول پہ بٹھایا 2.5 گھنٹے تو منشا صاحب نے کیا کہا. اور اگلے چند دنوں میں مبشر لقمان یوٹیوب چینل پہ ہی آپ کو اس کی مزید خبریں ملتی رہیں گی. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک ہماری خبریں پہنچیں، اپڈیٹس پہنچیں، نیوز اور ویوز پہنچیں، تو پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، تاکہ آپ آئندہ کبھی کوئی بھی اچھی خبر یا امیڈیٹ خبر، ارجنٹ خبر مس نہ کر سکیں. بہت یعنی اندر کی خبریں ہیں، اور میں آپ کے پاس لے کے آ رہا ہوں کہ وہ خبریں جو ابھی تک کسی کو بھی نہیں پتا، غالباً کسی کو بھی نہیں پتا، اور جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں. جیسے آپ سوچ رہے تھے کہ فواد حسن پتہ نہیں کس حال میں ان کا کیا ہو رہا ہے. آپ کو میں یہ بتا سکتا ہوں، بڑا گارنٹیڈ بتا سکتا ہوں کہ نیب جو ہے وہ فواد حسن کے اوپر بہت زیادہ انہوں نے مواد جمع کر لیا ہے، اور 1 بلین سے زیادہ کی جو انہوں نے کرپشن ایک پرٹیکولر کمپنی میں ان کے اوپر پکڑی ہے، اس میں 4 شیئر ہولڈرز بھی مل گئے ہیں. فواد حسن کے اس کمپنی میں 25% شیئرز ہیں، ان کی بیگم رباب کے 25% شیئر ہیں، ان کی سالی کے شیئر ہیں، اور پھر ان کے بیٹے کے شیئر ہیں. اور ان سب کے یعنی ان کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک کا نام انجم ہے، ایک کا نام وقار ہے، ان کے 20 شیئرز ہیں اس میں. اور اب فواد حسن کے متعلق آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ وہ نیب کے شکنجے میں پوری طرح آ گئے ہیں. آپ کو بتاؤں کہ نیب نے گورنمنٹ آف پاکستان کو بڑی میجر ایک آفر کی ہے. نیب نے گورنمنٹ آف پاکستان کو لکھ کے بتایا ہے کہ IPPs، یہ جو پاور پلانٹس ہیں، جس میں بڑے بڑے نام نہاد لوگ ہیں، 1400 بلین جن کا گردشی قرضہ جو ہے حکومت پاکستان کے اوپر چڑھا ہوا ہے، نیب نے ان کا اپنی طریقے سے ایک آڈٹ کیا. مجھے نہیں پتا انہوں نے یہ آڈٹ کیسے کیا، کیا یہ ہیٹ ریٹ پہ آڈٹ کیا ہے، کیا کسی ایلوکیشن کے اوپر آڈٹ کیا ہے، یا اس کی کیپیسٹی کے اوپر آڈٹ کیا ہے کہ 30% کیپیسٹی اور 100% وہ ریٹس لے رہا ہے گورنمنٹ سے، آئل کے اوپر کیا ہے. لیکن انہوں نے آڈٹ کیا، اور نیب کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمیں IPPs کو ہمارے حوالے کر دے حکومت پاکستان، تو IPPs کا 1400 بلین نہیں دینا پاکستان کی حکومت نے، بلکہ اینڈ میں پتہ چلے گا کہ IPPs نے حکومت پاکستان کو پیسہ دینا ہے، جو اس سے پہلے بھی گردشی قرضوں کی مد میں یہ لپیٹے مارتے رہے ہیں. کبھی نواز شریف صاحب سے لیتے رہے، تو کبھی پیپلز پارٹی کی حکومت سے لیتے رہے، خاقان عباسی سے لیتے رہے. یہ سارا جو ہے انہوں نے اپنے فگرز کو فج کیا ہوا ہے، اور نیب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر تمام انٹرنل ورکنگ کر لی ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چاہے گی تو ہم اس کو اس افریط سے، اس دیو سے نجات دلوا سکتے ہیں. ایک بہت بڑا کیس جو ہمارے یعنی سامنے آیا ہے، اس کی مزید میں تفصیلات لے رہا ہوں، اور انشاءاللہ چند دن میں آپ تک ایگزیکٹ اس کی ڈیٹیلز لے آؤں گا. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے، میں ایگزیکٹلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب میاں عامر محمود جو تھے وہ لاہور کے ناظم ہوتے تھے، تو انہوں نے ایک بڑا اچھا اور جامع سسٹم بنایا ہوا تھا لاہور کی صفائی کا، اور جو بڑا کاسٹ افیکٹو بھی تھا. پورا لاہور جو ہے اس کی صفائی جو ہے وہ 1.5 بلین روپے میں ہو جاتی تھی. اور اس کے بعد اس کوڑے کو جو ہے ری ہیش کیا جاتا تھا، ری سائیکل کیا جاتا تھا. اس میں حکومت یا میونسپلٹی جو مزید پیسے اس کو آ جاتے تھے، تو ان کی اپنی کاسٹ جو تھی کم ہو جاتی تھی. اور اس کی 2 ٹیئرز بنائی ہوئی تھیں. ایک وہ جو کوڑا کلیکٹ کرتے تھے، یہ کام کرنے والے، جھاڑو دینے والے لوگ جو ہیں، یا میونسپل کارپوریشن کے جو ملازمین پہلے ہوتے تھے، آپ سڑکوں پہ دیکھتے تھے ایک مخصوص یونیفارم میں. اور اس کے بعد ایک بیک اینڈ کی جو بڑے کوڑے کے ڈھیر اٹھا کے گاڑیوں میں ڈال کے اس کو ڈمپ کرتے تھے، لے جا کر ٹریش کو الگ الگ کرتے تھے. لیکن جیسے ہی میاں شہباز شریف آئے، انہوں نے ٹرکش گورنمنٹ کے ساتھ کیا معاہدہ، اور آج یعنی حکومت پنجاب جو ہے 16 بلین روپے جو ہے اس کے ٹریش کے پیسے جو ہے وہ دے رہی ہے. اور 16 جو کام 1.5 بلین کا تھا، میکسیمم اگر انفلیشن بھی ہوتی تو 1.25 یا 2 بلین کا ہو جاتا، وہ کام 16 بلین کا ہو رہا تھا. کیونکہ
शहबाज शरीफ साहब जिस कंपनी से ठेका करके आए थे टर्की की, उसको उन्होंने वो पैसे देने थे, कुछ करना था। तो नैब, अब नैब जो है ना, उसको पता नहीं कौन खबरें दे देता है। हमारे पास तो चुड़ैल है जो कभी कभी खबर देती है, नैब के पास वो लगता है पूरी चुड़ैलों का एक वो जो है ना ख़ानदान मौजूद है, और वो उनको खबरें देता है। और नैब का ये कहना है कि हमने इस केस की पूरी तहकीकात कर ली है और शहबाज शरीफ अब इस पे नहीं बच सकते। और बराह रास्त शहबाज शरीफ का नाम आ रहा है कि कूड़े के नाम पे कितने अरबों रुपया उन्होंने इस मुल्क का और अवाम का खाया। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आपको बताने लगा हूँ। ये वो खबर है जिसके एवज तो कई केसेस भी मेरे ऊपर चल रहे हैं ऑलरेडी। वो मैं इधर खबर देता हूँ, उधर वो कहते हैं कि जी ये गलत खबर दी है, जबकि ये वो खबरें जो नैब के अंदर की खबरें हैं। ये मेरी बनाई हुई खबर नहीं है। अली जहांगीर सिद्दीकी पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके हैं अमेरिका में। उनको कभी एम्बेसडर बनना नहीं चाहिए था, उनको लगाना नहीं चाहिए था शायद काकान अब्बासी को, उनके ऊपर बड़े क्वेश्चन मार्क्स थे, और अली को लेना नहीं चाहिए था, लेकिन ले लिया उन्होंने। और अली जहांगीर सिद्दीकी पे अब साबित हो गया कि उन्होंने तकरीबन 10.5 अरब रुपए की करप्शन जो है ना, वो तो उन्होंने की ही की है। जो और उनसे लिंक्ड है, चाहे वो एसगार्ड 9 कंपनी में है, चाहे वो मैविश फाउंडेशन में है, या और कंपनीज़ के अंदर है, वो उसके अलावा है, मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा। लेकिन ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, ये अली जहांगीर सिद्दीकी ने 10.5 बिलियन की जो करप्शन की है, उसके ऊपर नैब अब पहुँच गई है और घंटियाँ बजा रही है, टन 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 टन। अली जहांगीर सिद्दीकी के वालिद जो हैं जहांगीर सिद्दीकी, जो उर्फ़ आम में जिनको काफ़ी लोग उनके ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगाते हैं, और आपको पता है उनकी किससे रिश्तेदारी है, समझाना किससे है, मैं अब उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन जहांगीर सिद्दीकी के ऊपर भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने बैंक ऑफ पंजाब के, जब वो रूह रवां थे, उसमें करता धरता थे, इन्फ्लुएंस था उनका, तो उन्होंने बैंक ऑफ पंजाब के शेयर्स जो हैं वो डंप करवाए और लोगों को कन्विंस किया कि वो बैंक ऑफ पंजाब के शेयर्स लें, और उन्होंने कहा कि ये बहुत ऊपर जाने वाला है, इसमें इनसाइड इसकी एसेट्स इतने हो गए हैं, ये हो गया फलां फलां, जो भी तरीका होता है। अब वो ले लिए लोगों ने शेयर्स, बाद में पता चला उनको टीका लगा 4 बिलियन का। गवर्नमेंट नैब क्यों इन्वॉल्व हुई यहाँ पे? क्योंकि जितने शेयर्स लेने वाले लोग थे वो हुकूमत पंजाब के इदारे थे, हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब के इदारे थे, और गवर्नमेंट को 4 बिलियन का ये टीका लगाया गया जहांगीर सिद्दीकी की तरफ से। और उम्मीद है कि अब बहुत जल्द नैब जो है वो ना सिर्फ अली जहांगीर सिद्दीकी बल्कि जहांगीर सिद्दीकी के ऊपर भी अपना अहाता और घेरा तंग करने वाली है। जनाब, आ गया वो दिन जिसका इंतज़ार था। मियां मोहम्मद मंशा उर्फ आम MCB 19 बिलियन में लेने वाले और देने वाले उसके भी 11 बिलियन MCB का नैब में पेश हुए। और जब मंशा साहब वहाँ पे पेश हुए तो मंशा साहब ने कई बातों का इतराफ़ कर लिया और कई बातों से मुनकिर हो गए। उनका मुझे इसका पता नहीं। जिक्र हो रहा था उनके साहबजादों का। ये लंदन में जो जेम्स होटल एंड क्लब है ना, ये उनके 2 बेटे और 2 बहुओं के नाम है। और मियां मंशा जो हैं उन्होंने हामी भरी, और नैब, पहले तो उन्होंने नैब की बड़ी तारीफ़ की वहाँ बैठ के। तो आप पता नहीं अब वो बाहर आके करते हैं कि नहीं करते। पहले तो वो बेल बिफोर अरेस्ट ही अप्लाई करते रहते थे, लेकिन नैब ने उनको एक बात बावर कराई कि जनाब हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। उन्होंने कुछ उनको क्वेश्चंस पूछे हैं कि ये क्वेश्चंस आप अगली बारी में इनके जवाबात ले आएँ अपने बेटों से। तो आपको आज हमने बुलाया है उनके बाप की हैसियत से। हमने मियां मंशा को चार्ज नहीं करना इस पर्टिकुलर केस में, उन्होंने कहा, अनलेस एंड अनटिल डायरेक्ट लिंक साबित होता है। लेकिन आज बुलाया इस वजह से, और उनका कि ये जो ट्रेल है ये आपको प्रोवाइड करवा के देनी है जिसका उन्होंने वादा किया। तो अब देखते हैं अगली पेशी में मियां मंशा साहब क्या करते हैं। लेकिन पाकिस्तान का ऑफिशियली सबसे अमीर आदमी आज नैब की अदालत में 2.5 घंटे एक स्टूल के ऊपर बैठा रहा। आज का दिन भाई कुछ लोगों के लिए भारी दिन था। बेंच भी वही था, सब कुछ वही था। साद रफ़ीक आए थे ये सोच के कि उनको भी रिलीफ मिल जाएगा जिस तरह शहबाज शरीफ को इसी बेंच से रिलीफ मिला। तो आज नैब वाले भी बड़ी तैयारी करके आए थे, और नैब के जो प्रोसिक्यूटर्स थे उन्होंने ढा 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 करके ऐसे दलाइल दिए कि खुद ख्वाजा साद रफ़ीक के वकला ने कहा खुदा के लिए हमें अगली तारीख दे दो, हमें 1 अप्रैल की तारीख दे दो। हमने अभी कोई इन दलाइल को काउंटर ही नहीं करना, आर्ग्यू ही नहीं करना। साद रफ़ीक दोबारा नैब की तहवील में, नैब की जेल में, और उनकी फ़िलहाल कोई अभी बचत की फौरी तौर पर उम्मीद नहीं है। नैब के ज़राए जो हैं अब मुझे ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपील तैयार कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ की बेल कैंसिल हो,
मियाँ शहबाज शरीफ नैब के मुताबिक, मैं नैब की बात कर रहा हूँ, नैब के मुताबिक ना ही बीमार हैं और ना ही बेकसूर हैं। उनका कहना है ये मुजरिम भी हैं और इन्होंने कसूरवार भी किए, इन्होंने करप्शन भी की और उनके पास सब पूरे एविडेंसेस हैं और ये बीमारी का बहाना किया हुआ है जिसकी वजह से बेल ली हुई है। आप इनकी मूवमेंट देखें, उठान चढ़ान देखें, शूटिंग देखें, सब कुछ देखें। आपको कहीं कहाँ से लगता है आपको कि आपका खुदा न खास्ता वो कहते हैं कि अल्लाह का करम है। मैं ये कह रहा हूँ अच्छी बात है, अल्लाह का करम, उनको कोई बीमारी नहीं। अब उनको आने दें हमारी तहवील में, क्योंकि 1.5 अरब का, $1.5 बिलियन का तो हमें ये एविडेंस मिला है कि दुबई में से ऐसे लोगों ने पैसे मुंतकिल कराए हैं जिनके पास शनाख्ती कार्ड भी नहीं था। ये पता नहीं कौन लोग हैं। इसके ऊपर तो रोशनी मियाँ शहबाज शरीफ डालेंगे, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब आने वाले दिन आपके लिए ज़रा मुश्किल और यानी तकलीफ़ों का पेश खेमा लेके आ रहे हैं, क्योंकि नैब का मैंने मूड देखा है और मेरे ज़राए मुझे ये बताते हैं कि अब जो वकील वो कर रहे हैं बड़े तगड़े वकील हैं। तो मियाँ साहब लगे रहें, बीमारी का सर्टिफिकेट बनाते रहें, शायद देने पड़ जाएँ अनकरीब। कल मेरी मुलाकात हुई अपने दोस्त अलीम खान साहब से। अलीम खान उस वक्त आए थे पंजाब असम्बली में सेशन में शिरकत के लिए। वहाँ और भी मैं गया था, बड़े दोस्तों से मुलाकात हुई जिसमें मियाँ असलम इकबाल भी थे और ब्रिगेडियर एजाज शाह भी थे, दीगर यंग जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी आए, मोहसिन लगारी साहब भी और ओन चौधरी और क्या कहते हैं मलिक अहमद खान, बड़े बड़े हमारे जितने भी जानने वाले और हमें मिल सकते थे वहाँ पे मिले। व्हाट आई लाइक्ड अबाउट अलीम साहब वाज कि वो बड़े हाई स्पिरिट्स में हैं और अल्लाह तवक्कल है कि जी अल्लाह ताला जो करेगा इंशाल्लाह बेहतर करेगा। दुआ कर सकते हैं उनके लिए, अल्लाह ताला खैरियत रखे। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है, जैसे मंसूर अहमद भट्टू आपको मैं वार्न कर रहा हूँ, आपके ऊपर घेरा टाइट हो रहा है, आपके ऊपर केस तैयार हो चुका है। क्या केस है भट्टू साहब, फ़ोन करेंगे आपको बता दूंगा, लेकिन केस टाइट होने वाला है। और अब क्योंकि आप पीपल्स पार्टी से भी निकल गए हैं, कहीं और पे भी नहीं, तो ज़रूर कहीं ना कहीं अब आप मेल मिलाप करें, कुछ ना कुछ करें, वरना ये बड़ा सख्त घेरा है, आपको बता रहा हूँ। जो लोग समझते हैं कि हुकूमत वक्त जो है बची हुई है या हुकूमती पार्टी जो है बची हुई है, आपको बताऊँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बड़े लोग हैं जो ज़ेर ताब आने वाले हैं। 3 तो ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली यानी ज़ेर ताब आने वाले हैं और जिनमें से एक के मतलब तो आपको बताऊं कि नैब उनको उठाने वाली है, अनकरीब बहुत जल्द उठाने वाली है। वज़ीर हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल वज़ीर हैं पंजाब के, उनको नैब अगले 1 हफ़्ते से 2 हफ़्ते के दरमियान लगता है, मुझे ये टाइमलाइन लगती है, मैं अंदाजे से बता रहा हूँ कि इस पीरियड में वो उनको उठा लेगी। उनका नाम मैं अभी नहीं बताऊँगा। साउथ पंजाब से उनका ताल्लुक़ है, हमारे बड़े अजीज़ वाकिफ़ हैं, अच्छे वाकिफ़ हैं, दोस्त हैं। और क्या कहते हैं कि गज़नफ़र चीना जो हैं ये भी, इनको भी बच बचाव अपना करना चाहिए। लेकिन समीउल्लाह चौधरी ये जो फूड के मिनिस्टर हैं और ताहिर चीमा भावल नगर के जो हैं, इन दोनों को मैं ये बता दूं कि इनके मतलब एक खुफिया इदारे ने रिपोर्टें मुरतब करनी शुरू कर दी हैं वज़ीर आज़म को भेजने के लिए, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि वज़ीर आला को ये रिपोर्ट्स भेजने का फ़ायदा नहीं, वज़ीर आला उन रिपोर्ट्स को नज़रअंदाज ना कर दें तो ये डायरेक्ट हम वज़ीर आज़म को भिजवाएंगे। और इन 2 के ऊपर ज़रा तेज़ी से काम इसलिए शुरू हो गया क्योंकि वीट का सीज़न आने वाला है और कहा जाता है कि समीउल्लाह चौधरी साहब जो है वो फिर वीट की कटाई और सेल, और ये आपको पता है ना इसमें क्या क्या होता है, तो कहते हैं जो करना है उससे पहले ही कर लें ज़रा सा। आने वाले दिनों में नैब की और भी बड़ी खबरें हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप तक जो लोग हैं जो ज़ेर ताब आने वाले हैं उनकी कोई फहरिस्त हो, वो आपको मिल जाए, या मज़ीद खबरें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें, तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मैंने जैसे पहले कहा बेल आइकॉन दबाएं ताकि यू आर इन टच विद मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।